question. So I welcome you all again in the SP Smart Hybrid schooling system. I welcome you, and we will be discussing another set that has been shown by me and shared by me with the help of a screen, and I think you are able to visualize the thing which has been presented by me and in this screen shared. So बच्चे, I will be starting with the section C. As you know, section C is the section that we will be preparing really well at our places. So as you know, the section C consists of total 30 marks. It is one of the most weightage section in your paper, and as you know, we are all preparing the section C at homes, and definitely we would like to start up the paper with the section C. As I have already told you, the first impression is the last impression. So बच्चे, the very first question is the extract based question. Let us understand the stanza, and we will be answering the questions which are purely based on the stanza given. I want you to actively participate in the discussion, and definitely your points are really needed. Let's make this discussion two-way discussion, and I don't believe in making a one-way side communication, right? Okay. So starting up with the first stanza says, "And who art thou? Said I to the soft falling shower, which strange to tell gave me an answer as here translated. I am the poem of earth, said the voice of rain." So बच्चे, from which poem this stanza has been taken? Who will be answering the question? From which poem this stanza has been taken? Class? Shoaib Ahmed. Shoaib, are you there? Class, switch on the cameras. Shoaib, please unmute yourself. Yeah. Yes, sir. Bache, from which poem this stanza has been taken, and who's the poet of the poem? Sir, I don't remember. You don't remember? Thank you. Who else? Anubhav Sharma. Bache, I will not tell you individually to switch on the cameras. If I'm saying you switch on the cameras, then that means you have to switch on the cameras without any fail. Bache, this stanza has been taken from a very nice poem which has been written by Walt Whitman, and the name of the poem is The Voice of the Rain, right? And who's the poet for the same? Walt Whitman. Okay. Moving to the next question. The next question says, why did the writer find it strange to receive an answer? Who will answer this question? Rohit, will you be able to answer this question? Yes, sir. Of course, sir. I will. Sir, because sir, as we know, sir, that a voice can't speak, so poet found that it stand because sir, voice was saying. Ren was saying to the poet that Ren was answering to the questions of the poet. That's why the poet finds that it's a strange thing for that. Okay. So, bache, when the poet asks, "Who art thou?" to the soft falling shower, तो यहाँ पे रेन ने रिप्लाई किया, which was very strange for the poet. Answering the question which was asked by the poet by Rain was very strange for the poet, right? Okay. Coming to the next question, which poetic device has been used in this line? So, if you go through this line, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. तो I यहाँ पे यूज हुआ है एक नॉन लिविंग थिंग के द्वारा. So the poetic device which has been used is personification. Got it, बच्चे? Okay. Moving to the next question, why did the writer translate the answer given by the rain? क्यों poet ने? Excuse me, sir. Yes, बच्चे. सर, personification सर एक बारी बताना सर कभी होता है? पर्सोनिफिकेशन में बच्चे जब एक नॉन लिविंग थिंग एक लिविंग थिंग की तरह प्रिटेंड करती है, राइट, तो उससे पर्सोनिफिकेशन हम पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं. जैसे कि क्या कभी रेन बात कर रही है? करती है परमवीर?
नो सर। बट यहाँ पे रेन कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, राइट। आई मतलब कि वो अपने आप को कंसीडर करती है एज ए पर्सन, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हम यूज करेंगे। सो दिस पोएटिक डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो बच्चे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर ट्रांसलेट द आंसर गिवन बाय रेन? क्यों ट्रांसलेट करता है? Any reason for it? Paramveer, you need to turn on the camera, बच्चे. Okay, good. Shoaib, turn on the camera. Okay. Why did the writer translate the answer given by the rain? क्यों translate करता है poet आंसर को जो कि रेन देती है? Because the poet want to express his फीलिंग्स अबाउट रेन, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, तभी वो ट्रांसलेट करता है आंसर को। ठीक है, वो फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग थी स्ट्रेंजनेस की। ही फेल्ट स्ट्रेंज व्हेन ही हर्ड द आंसर विच वाज गिवन बाय रेन टू द आस्क्ड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड बाय द पोएट इटसेल्फ। गॉट इट बच्चे? बच्चे, आई वांट योर एक्नॉलेजमेंट। गॉट इट? Yes sir. Okay. Moving to next question बच्चे, अगेन देयर इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका पॉइंट जो है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें से 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और 6 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे बच्चे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको लिवरेज है 2 क्वेश्चन करने की, राइट। सो स्टार्टिंग अप विद द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन is the son responsible for his father's helplessness in the poem Father to Son? क्या आपको लगता है कि सन रिस्पॉन्सिबल था फादर की हेल्पलेसनेस के लिए फादर टू सन में? Who will answer the question? अथर्व? यस सर। बच्चे, क्या आंसर होगा इसका? क्या आपको सच में लगता है कि सन रिस्पॉन्सिबल था फादर की हेल्पलेसनेस के लिए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, एक बार वापस रिपीट कर दो। बच्चे, मेरी आवाज क्लियर है सबको? Yes sir. अथर्व, यू हैव सम कनेक्टिविटी इशू बच्चे। मैं ये फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। द क्वेश्चन सेज, इज द सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फादर्स हेल्पलेसनेस इन द पोम फादर टू सन? यस सर। हाउ कैन यू से बच्चे? सर बिकॉज जो फादर थे, ही वांटेड हिज सन टू बी बैक एट एनी कॉस्ट, एंड उनका ऐसा भी कहना था, इट डजंट मैटर इफ ही इज इवन प्रोडिगल। ओके, देन बच्चे, व्हाट वाज द हेल्पलेसनेस? फादर की हेल्पलेसनेस क्या थी? सर हेल्पलेसनेस ये थी कि ही वाज लिविंग ऑल बाय हिमसेल्फ अलोन। ओके, फादर की बच्चे, अगर हम पोएम की बात करें तो फादर की हेल्पलेसनेस ये थी कि फादर वांट टू डेवलप द सेम रिलेशन व्हाट ही यूज्ड टू हैव विद हिज सन व्हेन हिज सन वाज यंग, राइट। नाउ द फादर्स हेल्पलेसनेस इज दैट in the starting of the poem it has been shown that they are living in the same place but they act as strangers to each other. In this when the poems goes on, it is being shown in the poem that now fathers want that son should come back to home, the home which belongs to him only. He is ready to sacrifice, he is ready to forgive everything, forget everything, he is ready to forgive his son too, and he also want his son to be prodigal, but he should come back to home. So बच्चे, yes, the son was responsible for the helplessness of his father because he has not accepting the efforts which are being made by the father. So इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख के आंसर करेंगे। Is that clear to everyone? Yes sir. Okay. So बच्चे, coming to next question, the next question says, write 2 instances in the poem which highlights its humor and irony in the tale of Melanchthon. 2
ऐसी चीज़ें बताओ, एक हंसने वाली और एक आयरनी वाली। आयरनी मतलब कि यार आयरनी हो गया कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होगी। अगर आप इसमें से दो इंस्टेंसेस को लोगे एक ह्यूमर में, ह्यूमर क्या था कि जो मेलन था उसको किंग बना दिया गया था स्टेट में, राइट। और आयरनी क्या थी? आयरनी ये थी कि किंग जो था वो अपनी ही बातों का विक्टिम हो गया था। ही took a decision without thinking and the decision came back to him and ultimately he was the one who was hanged till death. Is it clear बच्चे? Class, I want acknowledgements. Yes, sir. Okay. Coming to the next question, what has the camera captured? This question has been taken from a photograph. Before going with this question, I would like to know the name of the poet for this particular poem. Shirley Townsend. Shirley Townsend. Very good, Krishna. अब this question says, what has the camera captured? कैमरा ने किसकी स्नैपशॉट ली थी, किसकी फोटोग्राफ ली थी? Who will explain this question? सर Yes, Krishna. सर कैमरा ने सर पोइट के मदर की और उनकी कजन की डोली और बेटी डोली की फोटो दी थी जब वो बीच गए थे वहाँ पैडिंग करने बीच में, तब की फोटो थी, उनके अंकल ने खींची थी। Okay, beta, the answer is the camera has captured the photo of the poet's mother with her two cousins Belly and Dolly when they were in the beach spending a holiday and the photograph was clicked by their uncle. ठीक है, किसने खींची थी? उनके अंकल ने खींची थी। Okay, coming to the short answer type questions from Hornbill बच्चे, the question is why has been the planet called एलिंग प्लैनेट? मैंने आपको बताया था एलिंग का मतलब होता है बीमार, ठीक है। तो क्यों चैप्टर में प्लैनेट को एलिंग प्लैनेट कहा गया है, बीमार प्लैनेट कहा गया है? हु विल आंसर द क्वेश्चन? रोहित चौधरी। यस सर। बच्चे क्या लगता है आपको, व्हाई हैज बीन द प्लैनेट कॉल्ड द एलिंग प्लैनेट? Sir, because sir, Earth is the only planet in which a human can survive. Not only human, but it is responsible for all the living organisms. But sir, as we know that human is exploiting the Earth day by day by using or enhancing the technology. So a human also depleting the resources which they need to be conserved. So like जो नदियां हैं वो भी सूख रही हैं, ऐसे रिसोर्सेज है जो हमें सस्टेन करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, बट ह्यूमंस आर डिप्लीटिंग देम, सो दैट्स व्हाई सर इसे कहा गया एलियन प्लैनेट। वेरी गुड, वेरी नाइस रोहित। बेसिकली अगर हम बात करें एलियन प्लैनेट की तो रोहित ने बिल्कुल एक अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा स्टार्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है सॉरी, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और आप देखेंगे बट वी ह्यूमंस वी आर सो सेल्फिश कि वी आर ओवर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन many things are getting extinct, vanish from this lovely planet, and we as human we are not keeping anything for the use of the future generation. That's why the planet has been termed as the ailing planet. Is that clear everyone? बच्चे सबको क्लियर है? Yes sir. So moving to another question, the another question says why was Howard Carter's investigation about King Tut resented by some people? अब यहाँ पे एक वर्ड है resented. Resented का मतलब होता है opposed. क्यों हावर्ड कार्टर की इन्वेस्टिगेशन जो थी, जो उसने किंग टट के लिए की थी, उसको लोगों ने अपोज किया? What was the reason? चंदन। यस सर सर इसमें बताया गया है कि जो हॉवर्ड कार्टर था सर, जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने किंग टूथ को सबसे पहले डिस्कवर किया था और मतलब कि उसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी उसके
जो उसका जो मतलब कि मम्मी था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, लेकिन जो उसका मतलब कि वो था, जो उसका वो लाइक था। क्या था बच्चे? सर उसकी जो बॉडी थी सर, वो उसके जो रीजंस के साथ चिपकी हुई थी, ट्रेजर्स के साथ चिपकी हुई हाँ थी। सर, जो रेजिंस का बेस था मतलब उसके साथ चिपक गई थी पूरी तरह से, और वो निकल नहीं रही थी। लेकिन उसने बहुत कोशिश की थी, उसने उसको धूप में भी रखा, मतलब कि रेगिस्तान की जो धूप होती है उसके उसके भी रखा, लेकिन फिर भी वो नहीं निकली। तो उसने वो क्या किया कि उस बॉक्स से उसके पार्ट्स काटे और वो दूसरे बॉक्स में ज्वाइन किए, जिसकी वजह से जो उसकी बॉडी थी वो डैमेज हो गई। और इसी बात की वजह से जो कि कुछ पीपल्स थे जिन्होंने बोला कि इसने बॉडी को डैमेज किया, तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो रोक देनी चाहिए। उसको पोज किया था। वेरी गुड। बेसिकली क्या हुआ था बच्चे कि पहले क्या होता था, पहले जब एक रॉयल फैमिली का कोई मेंबर या किंग मरता था तो उसकी बॉडी को ट्रेजर्स के साथ बांधते थे, ग्लाइड्स के साथ बांधते थे, रेजिन्स के साथ रखते थे। जब हार्वर्ड कार्टर ने इस बॉडी को फाइंड किया, डिस्कवर किया, टॉम खोला, तो इसने देखा कि उसके पास उस बॉडी को बहुत सारा ट्रेजर जो है वो लगा हुआ है, और बॉडी को उन्होंने देखा कि रेजिन्स उसके साथ स्टिक हैं। हार्वर्ड कार्टर ने रेजिन्स को मेल्ट करने के लिए बॉडी को सन में रखा, बट रेजिन्स मेल्ट नहीं हुई। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट गोल्ड फ्रॉम गेटिंग लूटेड फ्रॉम दी थीव्स, उसने क्या किया, बॉडी को काटना शुरू किया। उसने बॉडी को हर एक मेजर जॉइंट से काटा, उसने हेड को भी चॉप ऑफ कर दिया, एंड ही डैमेज दी बॉडी इन ए रियली वर्स्ट वे, जिससे वहाँ के जो लोकल्स थे, जो लोग थे, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशंस को रिसेंटमेंट किया था, मतलब कि अपोज किया था। गॉट इट बच्चे? इज इट क्लियर? बच्चे क्लियर है? यस सर, यस सर। Okay. So the next question is describe the mental condition of vogers on 4th and 5th January. अब vogers यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है। vogers होते हैं समुद्री यात्री, vogue होती है समुद्री यात्रा। तो जो vogers थे उनका मेंटल कंडीशंस क्या था 4th और 5th जान को? कौन बताएगा? यस कृष्णा। सर जैसे पता है कि 2 जनवरी को जब जो मतलब तूफान में चला है, जिसकी वजह से जो उनकी शिप में बहुत डैमेज आया था, और उन्हें मतलब पानी शिप में भर गया था जिसमें पंप लगाए थे। पर जनवरी 4 तक क्या हुआ, उनको मतलब एक रिलीफ मिला, क्योंकि जो पानी था मतलब ऑलमोस्ट निकाल लिया था। पर उनको कहीं ना कहीं लगा था कि हमारे बचना मुश्किल है, शिप क्या। ओके, तो बच्चे आई थिंक कनेक्टिविटी इज नॉट देयर। बहुत खराब हो गई थी, उनको लगा था कि पर उनकी जो चिल्ड्रन से मिली उनको सर कई जनवरी 5 तक पर जैसे ही अगले दिन बेटा उनको उनके चिल्ड्रन ने सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट किया अपने मतलब फादर को कि हमें जैसे उनके चिल्ड्रन ने कहा था, उनके सर ने कहा था कि हमें डर से डरता अगर हम एक साथ होंगे तो। ओके, बेसिकली बेटा क्या हुआ था कि जब 2nd जान को वेव वॉकर को एक बहुत ही बड़ी वर्टिकल वेव ने हिट किया था, तो वेव वॉकर के डेक में डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से पानी अंदर आ गया था। तो अब क्रूमेन्स जो थे, जो लैरी हर्ब थे और जो नरेटर था और मैरी थे, ये पानी पंप आउट करने में लग गए। अब इन्होंने काफ़ी हद तक पानी को पंप आउट किया, बट 4th और 5th जनवरी को अगेन द वेदर गॉट स्पॉइल्ड। वेदर जो था वो फिर से चेंज हुआ, फिर से ब्लैक क्लाउड्स हो गए, ठीक है, फिर से गस्टी विंड्स जो थी वो चलने लगी, और दे गॉट फ्यूरियस, क्योंकि उनको पता था वेव वॉकर इज नॉट इन इट्स बेस्ट कंडीशन, एंड दे वर क्वाइट श्योर कि एक और अगर वेव इनको हिट करेगा या तूफान इनको हिट करेगा, देन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लूज देयर लाइव्स। गॉट इट बच्चे? यस सर, यस। ओके, so moving to next question. The next question is 3 reasons why the author's mother was disturbed when he started going to city school. So who is the author of the portrait of the lady? It's Khushwant Singh, कुछ right? तो कौन से 3 रीजन थे? Mayank, are you there? Mayank बच्चे, are you there? यस सर। मैम कौन से 3 रीजंस थे बच्चे?
सर फर्स्टली तो उसको ये पसंद नहीं था कि स्कूल्स में उसको डांस क्लासेस और म्यूजिक सिखा रहे थे। वेरी गुड। और सेकेंडली they does not teach about scriptures and gods। वेरी गुड। और सर thirdly उसको ये पसंद नहीं आ रहा था कि वहाँ पे गॉड्स लाइक क्रिएचर्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जा रहा था, उसमें वेस्टर्न कल्चर्स को प्रमोट करा जा रहा था। बच्चे मैं एक बार फिर से आपको चैप्टर की तरफ लेके जाता हूँ। हुआ क्या था कि जब पुष्पवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर को सिटी में शिफ्ट किया था, तो पहले गांव में जब वो विलेज में थे, विलेज लाइफ में थे, तो दादी माँ ग्रैंड मदर यूज टू ड्रॉप पुष्पवंत सिंह टू द स्कूल। अब यहाँ पे दादी माँ वॉज नॉट एबल टू ड्रॉप पुष्पवंत सिंह बिकॉज ही वॉज ट्रैवलिंग विद दी थ्रू ए मोटर बस, राइट? ही वॉज गोइंग टू द स्कूल थ्रू ए मोटर बस, पहला रीजन। दूसरा रीजन के दादी माँ वॉज ए वेरी रिलीजियस पर्सन। जब ग्रैंड मदर केम टू नो के स्कूल में साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, रिलीजियस स्टडीज़ पे स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा, तो यहाँ पे उनको बुरा लगा। दिस वॉज द सेकेंड रीज़न। एंड थर्ड रीज़न, और फाइनली शी केम टू नो के स्कूल में डांस और म्यूज़िक सिखाया जा रहा है, एंड दादी माँ यूज टू फील लाइक कि डांस और म्यूज़िक जो है वो लो लेवल के लोग करते हैं, बेगर्स करते हैं, तो शी वॉज रियली annoyed. These were the three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Is that clear, बच्चे? Yes, Krishna, you want to say something? सर एक वो भी था जब मतलब ये इनको स्कूल में कंसेप्ट सिखाते आर्चिमेड प्रिंसिपल वगैरह, दादी को पसंद नहीं आए थे मतलब। बिल्कुल, बट हम तीन क्वेश्चंस, उन्होंने तीन रीजंस बताए, तो हमने तीन रीजंस डेफिनेटली हमने उनको बता दी। सो दे आर इजी टू रिमेंबर। तो ये तीन रीजंस आप याद रखिए एंड गो विद इट इन दी फाइनल्स, राइट? यस सर। Okay. Going to next question. The next question says Gangadhar Pant couldn't help comparing the country he knew with what he was witnessing around. So this question has been taken from The Adventure. ठीक है? तो किस तरह से पैरेलल वर्ल्ड का इंडिया जो था वो डिफरेंट था उस इंडिया से जहां से गंगाधर पंत आया था। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द इंडिया ऑफ 20th सेंचुरी वॉज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिया ऑफ 19th और 18th सेंचुरी। कौन आंसर देगा? हु विल आंसर? कैसे डिफरेंट था बेटा? कन्नव मेहरा, कन्नव आर यू देयर बच्चे? कन्नव मेहरा, कन्नव मेहरा, यू आर नॉट देयर इन द फ्रेम बच्चे। आदित्य ठाकुर, आदित्य, यस सर। बच्चे कैसे डिफरेंट था इंडिया 20th सेंचुरी का और 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के इंडिया से? सर मतलब कि जो ना ब्रिटिश का तो वो ऊपर का चला गया था, क्या हुआ था? तो लक्ष्य दलोत्रा। यस सर। बेटा कैसे डिफरेंट था ये? सर क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज थी, इन दोनों में उसको बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे थे। पहली जो कंट्री उसने देखी हुई थी, जो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस करा था, उसमें उसने देखा था कि वहाँ पर उनकी बैटल ऑफ पानीपत वो जीत गए थे, जिसकी वजह से उसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और वहाँ बिल्कुल भी स्लेवरी वगैरह कुछ नहीं था, जहाँ पे हमारे इंडियन उनके स्लेव्स नहीं थे, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो कंट्री उसको ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट लक्ष्य। बेसिकली बेटा क्या था कि गंगाधर पंत जब 18th और 19th सेंचुरी के इंडिया में गया, फॉर एग्जांपल पैरेलल वर्ल्ड में गया, तो वहाँ पे जो बैटल ऑफ पानीपत था वह अब्दालीज ने मराठा जीते थे, ठीक है? और 20th सेंचुरी के इंडिया में द बैटल वाज वॉन बाय अब्दालीज, ठीक है? सेकंड, जो 18-19 सेंचुरी का इंडिया था उसमें लोग स्लेव्स नहीं थे, दे वर हैविंग देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, और इंडिया जो था वो ग्रो कर रहा था, वो प्रोग्रेस कर रहा था। और इंडिया के जो स्टेशंस थे, रेलवे स्टेशन थे, जैसे कि बॉम्बे सेंट्रल बताया गया, वो बहुत ही क्लीन स्टेशन था। एंड द टाउन्स, इफ़ यू गो थ्रू द चैप्टर, हॉर्नबाइल रोड को जो है वो इंग्लिश टाउन के साथ कंपेयर किया हुआ है।
So this was the thing which made Gangadhar not could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. Got it? यस सर। समझ में आ गया बच्चे? सर ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी confined थी. They were not ruling entire India. They were confined to few places like Kolkata, Bombay, Madras only. Got it? आराज समझ में आया बच्चे? समझ में आया सबको? Yes. Okay. यस सर। So moving to next question. The next question is a long answer type question. The question says after reading the play Mother's Day. बच्चे ये प्ले अच्छे से करके जाना है. I'm telling you again and again. After reading the play Mother's Day, do you think the status of mother in your family needs to be changed? What do you think she lacks the most that needs to be addressed to? क्या आपको लगता है कि मदर्स डे प्ले पढ़ने के बाद आपकी मदर का जो स्टेटस आपके परिवार में वो चेंज होना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपके फैमिली में आपकी मदर लैक कर रही है? वो कौन सी चीज़ है जिसमें आपकी मदर लैक कर रही है? Who will answer this question? चंदन? चंदन, आर यू देयर? यस सर, यस सर। बच्चे क्या आंसर होगा इसका? सर जो मदर्स डे है, मतलब कि ये एक बहुत ही अच्छा प्ले है जो कि मदर्स की रिस्पेक्ट के बारे में लिखा गया है, एक फैमिली के मदर के रिस्पेक्ट के बारे में। जैसे इस प्ले में जो हमें बताया गया है कि जो मदर है एक सर्वेंट की तरह ट्रीट होती है एक घर में। मतलब कि उसके जो बेटे हैं वो भी उसकी बात नहीं मानते और उसका जो पति है वो भी उसकी बात नहीं मानता कोई भी। तो जो उसकी मतलब कि नेबर में रहने वाली एक और औरत होती है, लेकिन वो बहुत ही बोल्ड होती है, डेयरिंग और बोल्ड होती है। मतलब कि वो दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो खुद के काम से काम रखती है। वो अपने मतलब कि सर इसमें हमें बताया, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन में तो पूछा गया कि मदर का जो स्टेटस है वो चेंज होना चाहिए फैमिली में या नहीं ये नहीं होना चाहिए। आपकी फैमिली में मदर का स्टेटस चेंज होना चाहिए, क्या आपको लगता है बच्चे? यस सर, हर एक की फैमिली में मदर का स्टेटस चेंज होना चाहिए। हाउ कैन यू से? बच्चे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है कि मतलब कि मदर को रिस्पेक्ट देना, उनके कामों में हाथ बटाना और मतलब कि लगभग मतलब मदर की रिस्पेक्ट करना। बेटा ये सेकंड पार्ट का आंसर है जो आप बोल रहे हो, वेरी गुड। बट फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? देखो आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हो। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा है। जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल राइट नहीं दिए जाते एज मेल, अनफॉर्चुनेटली। इट इज़ नॉट अबाउट माई होम बट इट इज़ अबाउट ए कलेक्टिव सोसाइटी, राइट? It is a general thing which is being faced by each and every mother in their respected homes, that they are not being respected by their family members. Mother is one who is working tirelessly right from morning till night, 24/7. Even she is working on weekends when we are enjoying, and she is working for us without getting anything in return. What she needs, she doesn't need money. She only needs our respect. She needs appreciation from her husband. That is to be given, and that has to be changed in the family. One should respect his mother. One should respect his wife. I think she lacks the most is teamwork. She's working tirelessly as an individual. As her children, we should always help her, support her in completing of the household chores, so that she can also live a stress-free life. She can also take rest, and she can also spend her personal time. Got it बच्चे? बच्चे समझ में आया? यस Yes sir. कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया? आपको समझ, दोनों पार्ट को समझ में आ गया ना आपको? कि आपने बताना है कि किस तरह से मदर को ज़रूरत है और किस तरह से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं।
बेटा उसकी हेल्प करके, मदर को सपोर्ट करके। का बताना। फर्स्ट पार्ट में क्या समझ नहीं आया बच्चे? बच्चे फर्स्ट पार्ट में क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे, मैं समझाता हूँ। मतलब कैसे स्टेटस चेंज करना चाहिए सर, वो नेट वीक था तभी सर, आवाज नहीं। बच्चे फर्स्ट पार्ट का तो ये है कि घर घर की कहानी है कि मदर जो हैं वो टायरलेसली काम करती हैं सुबह से लेकर शाम तक। मदर्स जो हैं वो छुट्टी भी नहीं लेती, राइट? वो 24/7 काम करती है। मदर को क्या चाहिए इन रिटर्न? रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट है ना, एप्रिसिएशन चाहिए। तो डेफिनेटली इफ शी इज वर्किंग फॉर अस, शी इज डूइंग एवरीथिंग टायरलेसली, वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम, वी मस्ट लव हिम, oh sorry, we must respect her, we must love her, and we must support her as a team. We shouldn't let her work as an individual. यस Okay, अब समझ आया बच्चे? यस सर। Okay, coming to next question. The next question is, the shock treatment makes the thoughtless and selfish person realize the real position of the lady of the house. How far do you agree with the statement? Give reasons for your answer. इसका मतलब है जो फिट्जजेराल्ड का ट्रीटमेंट था फैमिली को ठीक करने के लिए, वो बहुत ही थॉटलेस था और उसने रियलाइज कराया सेल्फिश लोगों को, जैसे कि उसके चिल्ड्रन को, उसके हस्बैंड को, कि उनकी असली जगह क्या है और एक लेडी की असली जगह क्या है घर पे। ठीक है, क्या आप इससे एग्री करते हैं? एंड गिव रीजंस। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? कृष्णा, ओके। यस सर, मैं इसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जैसे हम फिट्जजेराल्ड को देखते हैं, जैसे जब मिस्टर पियर्सन बॉडी चेंज करते हैं फिट्जजेराल्ड से, तो जब से सबसे पहले केस जब डोरिस उनके पास आती है, डोरिस कहती है कि मेरे कपड़े रेडी हैं, पर वो जो मिस्टर पियर्सन होती हैं वो रिप्लाई करती नहीं, तुम मैं क्या फ्री दिखती हूँ। जब और उसका मजाक, उसको बॉयफ्रेंड होता है डोरिस का, चार्ली, उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे डोरिस रोती भी है और साथ में वो जो पेशेंट होती है वो स्मोक भी करती है। सेकंड केस होता है जब सीरियल घर पर आते हैं, सीरियल कहते हैं कि वो भी बोलते हैं कि मेरा काम हो गया है, वो कहते नहीं, वो फिर कहते हैं अल्कोहल भी कंज्यूम करती हैं। फिर तीसरा केस होता है जब उनके हस्बैंड आते हैं जॉर्ज, उनको बोलते हैं कि आपको टी रेडी की है, उन्हें कहा वो कहते नहीं, वो फिर तभी इसको अप्लाई करते हैं कि अगर मैंने पी होती तो तुमने क्यों नहीं बनाई। फिर उसे क्लब का मजाक उड़ाते हैं, इसी तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब जो सारे फैमिली मेंबर्स। एंड डू यू थिंक कि उसने सही किया? यस, शी डिड इट राइट, बिकॉज दीज टाइप ऑफ पीपल नीड्स these type of treatments only in order to realize them कि what is the status, what is the real position of a lady in a house. Got it बच्चे? Else if this act has been done in a very polite way, these people shouldn't have understood the importance of female in the family. Got it? Yes sir. Okay, so coming to the next long answer type question, you need to answer what opinion of the king do you form after reading the tale of Melancity. किंग कैसा इंसान था? टेल ऑफ मेलेंसिटी के बिहाफ पे कौन बताएगा? दानिश खजूरिया। दानिश। यस सर। बेटा explain this question. What opinions do you have for the king on the basis of the tale of Melancity? Danish? Yes sir. Answer this question बच्चे। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है बेटा, आंसर एक्सप्लेन करना है इसका। ओके सर, एक मिनट रीड कर लूं। क्वेश्चन मैं रीड करवाता हूँ बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि आपका क्या ओपिनियन है किंग को लेके ऑन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग द टेल ऑफ मेलेंसिटी।
ये कि सर जो किंग था वो फुलिश किंग था। सर जो उसका सेटअप था कि मतलब जैसे उसने बताया कि कैसे उसने मतलब वो हैंग किया लोगों को, मतलब ऐसे वो बोल रहा था कि जिसकी मिस्टेक है उसको हैंग करेंगे, उस एंड में जाके वो खुद ही हैंग हो गया। तो उसके हिसाब से मतलब वो एक फुलिश किंग था। और बच्चे द किंग वॉज नॉट एट ऑल ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो अच्छा किंग नहीं था। ही वॉज अ पर्सन हु took a decision without thinking. He didn't even imagine the consequences of the decision which was taken by him. He didn't even bothered will he able to do the justice with the people. He was a person who was not using his own brain, rather he was going with the statements which were given by different people who were considered as victim first, and then they were spared by the king. Ultimately, because of his foolish act, the people, the audience were getting aggressive, and he made a foolish decision that one has to be hanged. For him, life was nothing, right? Human life was nothing, and ultimately he made a plan to hang a person if the person is getting fitted to the noose. At the end, he was caught in his own act of own brainless act, and he was the one who got fitted with the noose as per his height, and he was hanged till death. Got it बच्चे? बच्चे समझ में आया? Yes. Class. Okay. Yes, sir. Moving Yes, to the sir. or part, the or part says comment on the title of Marga's story, the address. क्या address जो है वो सही title है? Yes, sir. Why? How can you say? Bishesh Kumar. Who was answering? Bishesh or Krishna? Krishna. Okay, Krishna. Sir, Krishna, why you think address is the right title for the story? सर क्योंकि सर ये पूरे चैप्टर ही मतलब स्ट्रीट मतलब इस एड्रेस पे बेस्ड है, जो हमारा एड्रेस किया था मदर ने उसकी मतलब पोइट की मैंने को दिया था मार्कोनी स्टेट हाउस में 46। क्योंकि जैसे हम जो ऑथर थे उनकी फैमिली ज्यूज थी, और वर्ल्ड वॉर के टाइम वो अपने घर को मतलब उन्होंने लगा था कि जो हमारा सामान शायद चल जाएगा, तो उन्होंने अपने नेबर को दिया था सारा, नेबर थे उनको सारा सामान दिया था, हैंग किया था ताकि वो बाद में ले सके उनसे। पर जैसे हम देखें ऑथर जब जाते हैं वहां पे, जैसे जो ऑथर होते हैं जाते हैं पर उनको रिफ्यूज करते हैं मना करने से, वो तो दोबारा एड्रेस पे जाते हैं अपना सामान लेने। पर जैसे वो देखते हैं कि ये सामान कैसे अरेंज है, बिल्कुल अच्छी तरीके से अरेंज नहीं है, वह उसको उनका मन मतलब चीजें लेने में नहीं रहता है, मतलब फिर वो जब सोचते हैं कि हम वापस चलते हैं। इसलिए उसका क्या होता है, अपने इस एड्रेस पर भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो डस्टिन में सारे रिलेटेड उनकी मदद से थी, जिन्होंने कहा था कि तुम आना, तुम लेने, इसके बाद तुम ये जो एड्रेस तुम्हें जो सामान जो मैंने दिया लेबर को वो तुम बाकी अपने साथ ले सको। पर हमने देखा कि बॉय में तो उन्होंने नहीं दिया था, उनके नेबर होते तो उन्हें जो एड्रेस था इनको बुला दिया अपने मतलब मन से। ओके बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्टोरी है एड्रेस के आसपास ही रिवॉल्व करती है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ स्टोरी जिसमें एक वॉर के बारे में बताया, वॉर होने से पहले और वॉर होने के बाद के चीज़ों को बताया गया है। बट जब वॉर स्टार्ट होती है, वॉर स्टार्ट होने से पहले ये जो मार्गा मिंगो है और इसकी मदर जो हैं, ये अपनी सारी वैल्यूएबल्स मिसेस डॉलिंग को दे देती हैं, और मार्गा मिंगो की मदर कहती है कि आप यू नीड टू रिमेंबर वन एड्रेस एंड दैट इज़ 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, मार्गा मिंगो इस एड्रेस को याद करती है, अपना घर छोड़ के वो शिफ्ट कर देती है बिकॉज ऑफ वॉर, क्योंकि जूइश को मार रहे होते हैं नाजीज, राइट। एंड फाइनली व्हाट हैपन कि जब वॉर ख़त्म होती है ये वापस उधर ही आती है जहाँ पे इसका घर था। ठीक है,
मगर अब चेंजेस क्या होती हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटस में चेंजेस हो जाती हैं। पहले शी वॉज हैविंग हर ओन हाउस, नाउ शी इज़ लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट, और ये फाइनली अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने जाती है मिसेस डॉलिंग के एड्रेस में, जो कि 46 मार्कोनी स्ट्रीट है। मिसेस डॉलिंग इसको पहचानती है बट प्रिटेंड करती है कि मिसेस डॉलिंग ने इसको रिकग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद ये वहाँ से चली जाती है, सेकेंड अटेम्प्ट में आती है। सेकेंड अटेम्प्ट में उसकी डॉटर होती है, मिसेस डॉलिंग घर पे नहीं होती है, वो इसे घर के अंदर अलाउ करती है। ये पूरे घर को देखती है, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों को देखती है, और इसे रियलाइज़ होता है कि इसकी चीज़ों को उस तरह से नहीं रखा गया है जिस तरह से रखी जानी चाहिए थी। इट वॉज नॉट टेकन केयर वेल बाय दी मिसेस डॉलिंग्स फैमिली, ओके, एंड मिसेस डॉलिंग। फाइनली उसका जो इमोशनल बॉन्ड है चीज़ों के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, एंड शी फील्स लाइक के नाउ शी मस्ट forget the address. That is why this is an appropriate title which has been given by Marga Mingo to her story The Address. Is it clear बच्चे? Yes. बच्चे समझ में आया? Class? Yes, sir. Okay. So your section C is over. We are moving to section B. Section B के हम questions discuss करेंगे. The very first question from section B says you are the head boy, head girl in your school. आप अपने स्कूल के head girl हो या head boy हो. Health department has organized a free journal medical checkup. जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके स्कूल ने नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गेनाइज किया है फ्री जर्नल मेडिकल चेकअप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. आपके स्कूल के सभी बच्चों के लिए आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है, ठीक है. तो आप पोस्टर में इट हैज़ टू बी देयर इन टू बॉक्स. आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, ठीक है. पॉइंट्स के बाद यू हैव टू मेक इट क्रिएटिव. अब आपने जब एक कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो आप कैंप की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर कौन है. तो बच्चे आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं देंगे, आप पॉइंट्स में देंगे. गॉट इट. आप इसको क्रिएटिव करेंगे. आप हेल्थ का जो सिंबल होता है क्रॉस, आप ये ड्राइंग में दे सकते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Okay. Moving to our part, the our part says you are a volunteer working in an NGO helping minds. आप एक NGO में काम कर रहे हो वॉलंटरी बेसिस में, यानी आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट. उस NGO का नाम है हेल्पिंग माइंड. The NGO has organized a free camp on mental health awareness. मेंटल हेल्थ क्या होती है? आजकल आपने देखा होगा लोग काफ़ी डिप्रेस्ड रहते हैं या उनको स्ट्रेस रहते हैं या एंग्जाइटी प्रॉब्लम है. तो इस तरह की प्रॉब्लम को जब हम कंसीडर करते हैं, इनको मेंटल हेल्थ के अंदर लिया जाता है. तो एक NGO ऑर्गेनाइज कर रहा है हेल्पिंग माइंड एक ऐसा कैंप जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी. आपको एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है गिविंग ऑल डिटेल्स अबाउट इवेंट. तो बच्चे सबसे पहले इसका हेडिंग लिखना है. ये कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन चीफ गेस्ट होगा. तो इस तरह से आप इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. बच्चे आई वॉज गोइंग थ्रू योर शीट. आई रियली वॉन्ट टू नीड द डिफरेंस बिटवीन टू लेट एंड सेल. टू लेट और सेल के बीच का क्या डिफरेंस है? हम कहाँ टू लेट यूज करते हैं और कहाँ सेल यूज करते हैं? कौन बताएगा? Sir, to let is used for rent and sale for permanent sale. वेरी गुड. जब हम किसी चीज़ को रेंटल बेसिस में अवेलेबल करवाते हैं तो उसका हेडिंग हम टू लेट यूज़ करते हैं. बच्चे इस बारी क्वेश्चन में लेट आउट आया था, उसका आपने हेडिंग मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने टू लेट लिखा है, मगर नीचे लिखा है कि वी वांट टू सेल द हाउस. आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया. आपको अपना घर जो है वो रेंट पे देना है, तो वहाँ पे आप लिखोगे द रेंट एक्सपेक्टेड. आपको अगर क्वेश्चन में दिया है कि आपको अपना घर बेचना है तो आप लिखेंगे दी
सेलिंग प्राइस Price. 40 lakhs और 50 lakhs whatever। तो बच्चे इस चीज़ों का ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मगर ये मैटर करती हैं, इससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। गॉट इट? क्लास क्लियर है? ओके, coming to next question, the next question says the best country for education ranking number 1 in the world is the USA। जो अमेरिका है वो एजुकेशन में वर्ल्ड में नंबर 1 में है, ठीक है। एज ए प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप एक लेटर लिखोगे कमिश्नर सेक्रेटरी को, ठीक है, एजुकेशन के, टू ऑर्गेनाइज ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे बच्चे यूएस में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जाता है, ठीक है, विद द हायर सेकेंडरी स्कूल इन यूएस। ये प्रोग्राम कितने दिन का होगा? 15 दिन के लिए होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स को बताएगा डिफरेंट सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड एंड अडॉप्ट फॉर देम फॉर बेटरमेंट ऑफ योर टीचिंग लर्निंग इन योर स्कूल। तो बच्चे आपने एक प्रिंसिपल की तरह लेटर लिखना है, किसको लिखना है? कमिश्नर सेक्रेटरी को। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंटर एड्रेस। सेंटर एड्रेस आपका आएगा, आप प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल एवीपी पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम नहीं दिया है तो ये क्रिएटिव होगा, सिटी, पिन कोड और डेट आएगी, ठीक है। आफ्टर लीविंग अ लाइन, आफ्टर राइटिंग द डेट अगेन यू नीड टू लीव अ लाइन। आप किसको लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं द कमिश्नर सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू है। और आप इसमें लाइन छोड़ेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। रिस्पेक्टेड सर से शुरू करके आप लिखेंगे कि क्यों आप चाहते हो कि एक 15 दिन का ऑर्गेनाइज किया जाए प्रोग्राम और इसका क्या इफेक्ट होगा। एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। आप यहाँ से रीफ्रेज करेंगे, रीफ्रेज करके आप रीड्राफ्ट करेंगे बॉडी को। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपका बॉडी 120 to 150 वर्ड का होना चाहिए और इसको क्लोज करेंगे। आप क्लोज कैसे करेंगे? यू विल लीव अ लाइन आफ्टर राइटिंग योर बॉडी, थैंक यू, अगेन लीव अ लाइन, yours faithfully ABC principal। बच्चे, इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, इसके और में एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है देयर इज अ डार नीड टू इम्पार्ट मॉरल एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में मॉरल एजुकेशन को पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसको आप रिक्वेस्ट करेंगे मॉरल एजुकेशन को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए स्कूल में, एंड सजेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस बुक्स इन स्कूल दैट आर सेक्युलर। कुछ ऐसे बुक्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जो कि भाईचारा प्रमोट करता है, जो कि सेक्युलरिज्म प्रमोट करता है, ठीक है, अमंग स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली बच्चे, जब आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को लिखेंगे तो आप एज ए स्कूल हेड ही लिखेंगे। तो स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल का यहाँ पे फिर से सेंटर एड्रेस आ रहेगा। यू हैव टू लीव अ लाइन, डेट इसी फॉर्मेट में आएगी, यू हैव टू लीव अ लाइन। आप लेटर किसको लिख रहे हैं? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आप डायरेक्टर एजुकेशन को लिख रहे हैं, डायरेक्टर एजुकेशन। फिर से आप पिन कोड डालेंगे, यू हैव टू लीव अ लाइन। सब्जेक्ट क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ मॉरल एजुकेशन एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब डायरेक्टर एजुकेशन जो है वो सभी स्कूल्स का उसका अंडर आता है, ठीक है, इट्स ए गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो आप इसको रिस्पेक्टेड सर से शुरू करेंगे। आप अपनी लेटर की बॉडी जब खत्म करेंगे, यू हैव टू लीव अ लाइन, थैंक यू, लीव अ लाइन, योर्स फेथफुली। आपका नाम ABC नहीं लिखेंगे, सॉरी, you will be writing Ram and principal। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। Sir, will you send the PDF after completing the class session? Yeah, it will be done. You don't have to worry about it. Okay. ठीक है, even you can go through the video बच्चे, the video will be shared। Okay. Sir. Okay. Thanks for that. You can go either way। तो बच्चे समझ में आ गया ये लेटर का फॉर्मेट क्लियर है सबको? बच्चे, लेटर का फॉर्मेट क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर, जैसे कि ईमेल राइटिंग होती है ना, ईमेल राइटिंग मैंने ऐसे यूट्यूब से देखा था सर, जैसे कि हम ये लिखते हैं CC कार्बन कॉपी, वैसे उसमें दिखाया हुआ है BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो लिखना जरूरी है सर? नहीं बच्चे, बस CC काफी है। CC काफी है। आपका CC और BCC कहाँ पे यूज होता है आपको पता है? ईमेल राइटिंग। ईमेल कौन से टाइप की ईमेल में? बच्चे, आपके ऑफिशियल ईमेल्स में यूज होता है, आपके पर्सनल ईमेल में नहीं यूज होता। आपके सिलेबस में सिर्फ पर्सनल ईमेल है, राइट? तो आपको BCC
लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका ईमेल का फॉर्मेट मैं बताता हूँ बच्चे। आपका सीक्वेंस सही होना चाहिए। यू हैव टू स्टार्ट योर ईमेल फ्रॉम FDTCS। मैंने एक फॉर्मूला दिया था, फिर से देता हूँ, FDTCS फ्रॉम डेट टू CC एंड सब्जेक्ट, और डेट के बिल्कुल सामने आएगा टाइम, इस मैनर में। ठीक है बच्चे, CC आप नहीं लिखेंगे क्योंकि CC में यू नेवर वांट कि आपका जो पर्सनल ईमेल है वो किसी और को पता चले। ओके ये ऑफिशियल ईमेल में यूज होता है। जब आपको ऑफिशियल ईमेल आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप CC करते हैं। ठीक है, व्हेनेवर यू आर राइटिंग टू द जनरल मैनेजर यू आर टेकिंग HR इनटू CC, और एज ए एम्प्लॉय यू आर राइटिंग टू HR यू आर टेकिंग योर रिपोर्टिंग मैनेजर इन CC। ये ऑफिशियल ईमेल्स की बातें, हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पर्सनल ईमेल आप हमेशा डियर से शुरू करेंगे और नाम लिखेंगे। आई हैव सीन मेनी ऑफ योर शीट्स यू आर नॉट राइटिंग द नेम ऑफ द पर्सन whom यू आर सेंडिंग द ईमेल। आप बॉडी को कंप्लीट करेंगे और इसे एंड करेंगे विद रिगार्ड्स एंड योर नेम। आपका सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए, ये लाइंस बनाना मैंडेटरी है, एंड ईमेल हैज टू बी इन प्रॉपर फॉर्मेट। बच्चे इसको पूरे फॉर्मेट से बनाइए क्योंकि ये 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर? सर ये बॉक्स भी बनाना है बच्चे? एवरीथिंग, दिस इज अ फॉर्मेट। बॉक्स इज अब नोटिस में बॉक्स बनाना है। यस सर, यस सर। क्यों बच्चे? इट्स अ फॉर्मेट, सो ईमेल का भी इट हैज ओन इट्स फॉर्मेट, तो आप इसी तरह से ईमेल बनाएंगे। गॉट इट? क्लास क्लियर है? ओके, यस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईव टीजिंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस। योर विटनेस ईव टीजिंग ऑन ए स्ट्रीट। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ईव टीजिंग क्या होती है? बच्चे कौन समझाएगा ईव का मतलब? बच्चे व्हाट डू यू मीन बाय ईव टीजिंग? क्लास? ध्रुव महाजन फ्रॉम नॉन मेडिकल B2। यस सर। बच्चे ईव टीजिंग क्या होती है? नहीं आता तो कोई बात नहीं। सर छेड़छाड़ करना। किसके साथ छेड़छाड़ करना? वेरी गुड। टीजिंग का मतलब होता है लड़कियों के साथ। वेरी गुड, एग्जैक्टली। ईव का मतलब होता है गर्ल्स को छेड़ना एक ऑफेंस है। अब ईव कहां से आया है? ईव आया है एडम एंड ईव वाले कंसेप्ट से। ठीक है, एडम किसके लिए यूज होता है? बॉयज के लिए, और ईव किसके लिए यूज होता है? गर्ल्स के लिए। ठीक है, ये याद रखना बच्चे। ईव टीजिंग क्या है? ये एक जुर्म है। आपने ईव टीजिंग देखा आज गली में, ठीक है, एंड द पब्लिक वॉज इनडिफरेंट बिकॉज ऑफ द fear created by the fear created by the perpetrators। पब्लिक ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनके अंदर डर था गूंस का। गूंस क्या होते हैं? गुंडों का। आपको रिपोर्ट लिखनी है एक न्यूज़पेपर के लिए और आप रिपोर्टर है कहाँ के? क्लीनर कश्मीर के। तो इस फॉर्मेट में क्या गलत है बच्चे? कौन बताएगा? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फॉर्मेट? मुकेश, नॉन मेडिकल B2। यस बच्चे इस फॉर्मेट में क्या गलत है? यहाँ पे आपका प्लेस नहीं लिखा है बच्चे। आई हैव केप्ट दिस थिंग फॉर यू। जम्मू एंड डेट 18th मार्च 2024। आपने हेडिंग लिखी, बाय आपका नाम, स्टाफ रिपोर्टर हैं, कहाँ के हैं, न्यूज़पेपर का नाम दिया है, न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे। ये इंसिडेंट कहाँ का है? जम्मू का है। कब का है? 18 तारीख का है। जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करेंगे यू हैव टू राइट इट इन पास्ट टेंस ओनली। ठीक है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 जो है ये आपकी बॉडी की बाइफर्केशन होती है। पैराग्राफ 1 में आप ओवरव्यू देते हैं, पैराग्राफ 2 में आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, और पैराग्राफ 3 में आप प्रिवेंटिव मेजर्स देते हैं। Everything has to be written into past. Is that clear बच्चे? यस Okay.
और क्वेश्चन की बात करें तो और क्वेश्चन कहता है a lot of measures have been taken by government to aware people about the importance of कोविड वैक्सीन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं किसके बारे में, क्यों कोविड वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। डिस्पाइट दैट ए बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन कंसीडर वैक्सीनेशन ए बिजनेस गिमिक। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन जो है ये बिजनेस गिमिक है। गिमिक क्या होता है? स्ट्रैटेजी, ठीक है, और उसको नहीं लगाते। और आपने इसके लिए एक आर्टिकल लिखना है जो कि न्यूज़पेपर में दिया जाएगा इस सिचुएशन के ऊपर। तो आर्टिकल का क्या फॉर्मेट होता है बच्चे? आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में आती है, यू हैव टू लीव अ लाइन एंड यू हैव टू राइट द बाय लाइन इन द सेंटर ओनली। उसके बाद यू विल बी लीविंग ए लाइन एंड स्टार्ट अप विद द बॉडी पार्ट। गॉट इट? इज इट क्लियर क्लास? क्लास इज इट क्लियर? यस सर। ओके बच्चे, अब एरर इस फॉर्मेट में करने जो कि मैं आपको बताऊंगा और जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, आपको जैसी ग्रोथ दी है, ठीक है, आपने इस पैराग्राफ को नहीं लिखना है, आपने पैराग्राफ को लिखना है। आप क्या कर रहे हैं, आप ऊपर वाला पैराग्राफ भी लिख रहे हैं और नीचे वाला पैराग्राफ भी लिख रहे हैं। आपने दो पैराग्राफ नहीं लिखने बच्चे, आपने एक ही पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप रॉन्ग वर्ड को रिप्लेस करेंगे राइट वर्ड के साथ और इसको अंडरलाइन करेंगे। यू हैव टू रीराइट द पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग wrong word with the right word and you need to underline the right word as it is shown by me as a sample for question number 7. Is it clear? सर ये वाला रिपीट करना एक बार दोबारा। हाँ बच्चे, आप क्या कर रहे हो, आप ना कॉपी पेस्ट कर रहे हो इस पूरे क्वेश्चन को। इसको कॉपी पेस्ट करना है, मगर किस तरह से करना है कि आप इसको जब रीराइट करेंगे, आपका जो इनकरेक्ट आंसर है, जैसे कि टॉल है, यहां पे इनकरेक्ट है, आप रीराइट कर रहे हैं। आपने ग्रो की जगह राइट आंसर लिखा ग्रू, आपने टॉल की जगह राइट आंसर लिखा टॉलर, और इसको अंडरलाइन करना है। रीराइट द पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग करेक्ट वर्ड विद इनकरेक्ट वर्ड एंड यू नीड टू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। गॉट इट? यस सर, यस सर। ओके, सो सेक्शन बी इज क्लियर। लेट्स मूव टू सेक्शन ए। बच्चे, सेक्शन ए में नोट मेकिंग में सबसे पहले टाइटल इज नेसेसरी। यू हैव टू गिव द टाइटल, ठीक है। आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं टाइटल में। राइट नोट मेकिंग, आपका पहला सब हेडिंग इंट्रोडक्शन, आपके सब पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के ऊपर ही चलेंगे, 1.1, 1.2, 1.3। आप एक और गलती कर रहे हैं, आप एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं मगर उसे अंडरलाइन नहीं कर रहे। प्लीज, आप एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो उसे अंडरलाइन जरूर करें। एक और गलती करें, कुछ बच्चे एब्रीविएशन ही नहीं यूज कर रहे हैं। बच्चा, अगर आप एब्रीविएशन नोट मेकिंग में यूज नहीं करोगे, योर नोट मेकिंग इज यूजलेस, राइट? यू विल लूज इजी मार्क्स। आप इस क्वेश्चन में 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो इजीली, मगर आप एब्रीविएशन नहीं यूज कर रहे तो आपके सीधा सीधा 10 नंबर चले जाते हैं। आप एब्रीविएशन वो यूज करेंगे जिन्हें आप एब्रीविएशन बॉक्स में हाईलाइट करेंगे। बच्चे, कुछ बच्चे इसमें बॉक्स नहीं बना रहे हैं, यू हैव टू मेक बॉक्स, ठीक है। और जितनी बार ये एब्रीविएशन आएगा, जैसे क्रोकोडाइल का एब्रीविएशन है CRDLS, ठीक है। अब जितनी बार क्रोकोडाइल आएगा आप इसमें उसका एब्रीविएशन ही यूज करेंगे। मिनिमम कितनी सब हेडिंग देंगे? 4 सब हेडिंग देंगे। मिनिमम कितने पॉइंट्स देंगे? 4 सब पॉइंट्स देंगे। इज इट क्लियर क्लास? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर, जब हमें जो पहला नोट मेकिंग स्टार्ट करनी है सर, वहाँ पे टाइटल के आगे टाइटल लिख के लिखना है मतलब? हाँ बच्चे, टाइटल लिख के देना है। सर जब सेकंड समरी के ऊपर लिखेंगे सर तब नहीं लिखना ना? तब नहीं लिखना है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ओके सर। आपको एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, आपका जो नोट मेकिंग का टाइटल है और समरी का जो टाइटल है वो सेम नहीं होना चाहिए। यस सर, यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूज किया समरी में क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन और यहाँ पे मैंने लिखा है क्रोकोडाइल एंशिएंट ग्रुप ऑफ रेप्टाइल्स। तो दोनों के टाइटल जो हैं वो मैच नहीं करने चाहिए। इज दैट क्लियर बच्चे? यस सर, वो क्लियर है। ओके, तो बच्चे आपकी जो समरी है, अभी भी मैंने कुछ शीट्स देखी हैं, आप
2 पेज में स्प्लिट कर रहे हैं। आपकी समरी जो है ये सिंगल पेज में आनी चाहिए, ये सिंगल पैराग्राफ में आनी चाहिए, ये 80 वर्ड्स की होनी चाहिए मिनिमम, और ये प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? बच्चे क्लियर है सबको? यस सर। जिशान अली, जिशान आर यू देयर? यस सर। बच्चे क्लियर है? यस सर। ओके बच्चे, अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में ही सिर्फ मैं आपको ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट माई गाइडलाइन, दिस इज गाइडलाइन विच आर बीइंग गिवन बाय जेके बोर्ड। आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। द सेम वे आई हैव रिटन द आंसर्स। जो MCQs हैं उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये स्टेटमेंट लिखेंगे और इसका आंसर करेंगे, खाली सी रख के नहीं छोड़ेंगे, सी लिखेंगे और इसके साथ पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक we have completed and discussed today's paper, all the 3 sections. I hope everything is clear to you. If there would be anything, please let me know. Bache, is everything clear? Yes. Okay, so we are ending the session. Thank you. If there would be anything, please feel free to connect me. Definitely we will be working on the doubts. Thank you and have a nice day.